Hello students, I am Anupam Dixit from Study Point Inter College, Hyderabad. Welcome in my online classes. Today I start first chapter of maths, which is number system. Understand? What is the chapter name? Number system. So in number system, first I will give the introduction and then after I start the explanation of exercises. Okay. So start today's class. What is a number system? Number system, that means what are numbers? So you know that the number are two types. First, real number, okay, and the second is a imaginary numbers. What is the numbers? First, real number, and second is a imaginary numbers. In this class, that means in class 9, you study the real numbers, and imaginary numbers you study in the higher classes, that means in first year and internal. Okay, so what is a real number? Real number, that means a numbers which represents on a number line, which can be represent on a number line. नंबर्स बेसिकली जो नंबर्स हमारे होते हैं रियल नंबर्स, वो दो टाइप्स के होते हैं. रियल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो दो टाइप्स के हमारे होते हैं. एक हमारा क्या होता है, विद डेसिमल, एंड सेकंड क्या होता है, विदाउट डेसिमल. ओके, सो फर्स्ट हम विद डेसिमल की बात कर लेते हैं. अब विद डेसिमल क्या होता है, ये भी हमारा 3 टाइप्स का होता है. जैसे 1.23, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अ टर्मिनेटिंग. क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. ओके, यानी कहने का मीन्स क्या है कि अगर हमने डिवाइड किया, यानी कि किसी नंबर्स को डिवाइड किया और उसका डेसिमल एक्सपांशन निकाला, तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है. दैट मीन्स देयर इज अ नो रिमाइंडर. अंडरस्टैंड? देन आफ्टर दैट 2.12 एंड सो ऑन. इसमें क्या है, इट इज अ रिपीटिंग. और इसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग. रिकरिंग का मतलब क्या है कि बार बार वही नंबर हमारा आ रहा है. रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपांशन और रिकरिंग. क्लियर? और इसे एक और भी नाम बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग. दूसरा क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपांशन हमारा खत्म नहीं हो रहा है. थर्ड क्या है, 3.1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. ये क्या है, ये भी है कि नॉन टर्मिनेटिंग. इसको भी बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. ओके, अब ये हमारे दो क्या बोले जाते हैं. अगर इस टाइप से आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिला या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपांशन मिलता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं. रेशनल नंबर्स बोलते हैं. ओके, और ये हमारे क्या कहलाते हैं, अगर इस टाइप का हमारा डेसिमल एक्सपांशन मिलता है तो वो हमारा होता है इरेशनल. ओके, क्लियर? देन क्वेश्चन arises कि what is a rational number and what is a irrational numbers. Have you understand these things? Okay, I will start. What is a rational number? Rational numbers, that means a numbers which can represent in the form of p upon q. That means a numbers which can represent in the form of p upon q where q does not equals to 0. That means remainder, that means the denominators should not be 0. Okay, यानी कि जो हमारा अगर हिंदी में बात करें तो ऐसा नंबर्स जिसको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, और
जहां पे जो उसका इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं, तो जो हर होता है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। दैट्स क्लियर। तो ये तो हो गए रेशनल नंबर्स। एग्जांपल्स क्या है, जैसे 3/5, 21/3, 50/4, like this. So these are the some examples of a rational numbers where the definition of a irrational number, that is the opposite to rational number, that means a numbers which cannot be represented in the form of a p/q are known as a irrational numbers. What are the examples? That means a √2, √3, √5, √7 and pi. The value of a pi equals to 3.145 something. Okay, because its a decimal expansion is a non-terminating, non-recurring, so it is an irrational numbers. Pi is an irrational number. Then I come on a second part of a real number, that means without decimal. Okay, have you understand? If you want to note it, please pause the video and note down the solution. Okay, then okay, then what is a without decimal? Without decimal, that means -4 and so on, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So these are without decimal numbers. In this, if I start from here, because these are the positive numbers, it is a 0, and these are a negative numbers. Okay, these positive numbers whole, these whole numbers are known as a integers. इन्हें हम क्या बोलते हैं? These are a integers. Okay, these are integers. Okay, that means from -infinity to +infinity, these are integers. अब इन integers में क्या होता है, 1 से लेके +infinity तक के जो नंबर्स होते हैं, ये हमारे क्या हैं? एक तो ये हमारे की पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है हमारे? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पहली बात तो ये हो गई, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। दूसरा, इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ओके, एंड द नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, यानी कि इसे हम एक वर्ड कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब नेचुरल नंबर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर? दैट मींस द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज अ नेचुरल नंबर्स। क्यों काउंटिंग नंबर? क्योंकि अगर हमें किसी चीज को काउंट करना होता है तो ऑलवेज वी स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक? क्या हम कभी 0 से स्टार्ट करते हैं? नो, दैट मींस वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। सो 1 2 3 4 5 are known as a counting numbers, and these counting numbers are known as a natural numbers. Okay, second, it is also a counting number. ये तो बात हो गई हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स की। अगर हम इन पॉजिटिव इंटीजर्स को, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर विद 0, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 ऐड कर लें तो ये हमारे कौन से नंबर हो जाते हैं? होल नंबर हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं भाई? होल नंबर हो जाते हैं। ठीक? सो द डेफिनेशन ऑफ होल नंबर, दैट मींस अ सीरीज ऑफ अ नंबर्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम अ 0 to +infinity is known as a whole number, and it is represented by W. Okay, then these are negative integers. ये हमारे क्या है? नेगेटिव। कितना पार्ट? पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमारा 0, ये हमारा नेगेटिव। इधर पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स को
बोलते हैं क्योंकि ये हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं और काउंटिंग नंबर्स को ही हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अगर इसी पॉजिटिव इंटीजर्स की स्टार्टिंग हम कहां से कर देते हैं, 0 से, तो वो नंबर सीरीज हमारी क्या हो जाती है, होल नंबर हो जाती है। ठीक, बस इधर ये -1 से -∞ तक ये हमारे क्या कहलाते हैं, व्हाट, दैट इज अ नेगेटिव इंटीजर्स एंड इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड q। ठीक, अब अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हम q प्लस बोलते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो वो हमारे क्या बोले जाएंगे, q माइनस बोले जाएंगे। सो दीज आर द सम नंबर्स। ओके, देन आफ्टर दैट रेशनल नंबर्स, मैंने डेफिनेशन आपको बता दी कि द नंबर्स which can be represented in the form of a p upon q where q does not equals to 0. Okay, then after that what is a prime numbers? Prime numbers, ये शायद आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में स्टडी भी किया होगा कि what is a prime numbers, what is a composite numbers, what is a co-prime number, but I am giving an introduction of a real numbers, then I explain कि what is a prime number। शायद आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा कि नंबर्स अगर कोई है तो उसका हम लोग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन की बात करें कि इफ अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर इटसेल्फ एंड 1, यानी कि ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो वो नंबर खुद जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और दूसरा 1, दैट मींस नंबर having only 2 factor 1 and number itself। ओके, ये तो डेफिनेशन हो गई। या दूसरी भाषा में हम क्या बात करें कि नंबर शुड नॉट बी डिविजिबल बाय एनी अदर एक्सेप्ट 1, यानी कि ऐसा नंबर जो 1 के सिवा किसी दूसरे नंबर से नहीं कटता, वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स फॉर प्राइम? 2, यानी कि 2 या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ओके, so this is the definition of prime. Then after that composite, composite numbers, that means a numbers which have a more than 2 factors, a numbers which have a factor other than 1 and the number itself are known as a composite numbers। क्या कि अगर कोई ऐसा नंबर्स है जिसके फैक्टर्स नंबर और 1 के सिवा भी कोई और भी फैक्टर्स होते हैं, निकल के आते हैं, तो वो हमारा नंबर composite numbers कहलाता है। That means a numbers which have a factors more than 2 factors, or you say that कि a numbers having a factor number itself and 1 is known as a composite number। Okay, clear? Examples 4, what are the factors? एक तो 1 है ही है, दूसरा it is divisible by 4 also and it is divisible by 2 also, so it have a more than 2 factors। दूसरी डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हो कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि ऐसा अगर एक कोई नंबर है जो दूसरी डिजिट से कट जाता है एक्सेप्ट 1, तो वो हमारा कंपोजिट नंबर्स कहलाता है। सीधी सी बात ये है कि a number is divisible by any other except 1 is known as a composite। सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन ये बोल सकते हैं। क्लियर? Prime numbers, a number is not divisible by any other except 1 is known as a prime numbers। Okay, then बात आती है co-prime की। Co-prime, a set of a number, यानी कि नंबर्स का सेट, यानी कि बहुत सारे नंबर्स हमें दिए हैं और हमसे पूछा कि is the given numbers are a co-prime, then how can I recognize it? So the definition is that if the set of numbers having no other common factor except 1,
अगर नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, then the set of numbers is known as a co-prime. Understand? Example 3 and 16. Okay, 4, 15. When you find the factors of 3 as well as 16, then 3 and 16 have only one common factor, which is 1. No other common factor except 1 in that. Here also, when you factorize 15 as well as 4, then you find that the 4 and 15 have only one common factor, that is a 1. So these are the sum sets of co-primes. Understand? So this is the basic introduction of real numbers. In next class, I will start the explanation of first exercise, that is a 1.1. So students, please like, share and subscribe my channel Anuj Classes, and if you find any problem in today's class, then please comment in comment box. Thank you. Have a nice day.